Good evening students. I am Priyanka Mane from SGM College Karad. Today we are discuss about the next point from the networking technology, which is a multiplexing. Before that we are discuss about what is we are studying in last lecture. In last lecture we are studied about the networking communication. In networking communication we are studied about the three types of networking communication, which is LAN, MAN and WAN. LAN means local area network, metropolitan area network and wide area network. In that LAN we can discuss about LAN. It will cover a small geographical area. In MAN it will cover a geographical area which is larger than the LAN, and in WAN we can study it will cover a large geographical area than the MAN and LAN. After that we are studying about the topologies. Topologies means the transferring or arranging a data elements in a computer network means the topology. In that we are discuss the three types of topologies: star topology, ring topology and the bus topology, with their advantages and the disadvantages. After that we are discuss about the characteristics, the six characteristics of the transmission medium, which are: first is the cost of the media, second implementation cost, third channel bandwidth, fourth is channel usage, fifth EMI and sixth last is the attenuation. After that we are studying study about the multiplexing. Multiplexing means the many to one. Multiplexing means many to one. In that it is, you can see in this picture, there are many inputs and the only one outputs, means the multiplexing. Multiplexing का मतलब है कि many inputs but only one output. Here the diagram of multiplexing, you can see that there are three PCs are connecting, but the output of these three PCs given to a single link or a cable. मतलब यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन पीसी कनेक्टेड है, विच आर connected to the multiplexer MUX, and output of that MUX is only the one cable. So multiplexing are uses for the for a transmission communication link between the two PCs. मतलब मल्टीप्लेक्सिंग हम यहाँ पर यूज करते हैं. इन PC1 वी कैन ट्रांसमिट सम डेटा, इन फ्रॉम PC2 वी कैन ट्रांसमिट सम डेटा, फ्रॉम PC3 वी कैन ट्रांसमिट सम डेटा. दीज डेटा आर collect by the link or a cable through these cable lines, and it will transmitted to the DMUX. DMUX फिर बाद में क्या करता है कि जो डेटा MUX ने ट्रांसमिट किया है वो कंबाइन करके, कोलैप्स करके, वो डेटा क्या करेगा MUX कि उसे ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और हमें एक पर्टिकुलर जो उसका मैसेज है वो मिल जाएगा. मतलब PC1 को जो यहाँ का मैसेज है वो मिल जाएगा, सेकेंड PC को यहाँ से जो ट्रांसमिट हो गया होगा वो मिल जाएगा, थर्ड PC को यहाँ से जो ट्रांसमिट हो जाएगा वो मिल जाएगा. इसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग. मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है मेनी टू वन. MUX का मतलब है मेनी टू वन, और DMUX का मतलब है वन टू मेनी. MUX का एग्जैक्टली उल्टा है DMUX. MUX का मतलब है मेनी टू वन और DMUX का मतलब है वन टू मेनी. मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि मल्टीप्लेक्सिंग में एक से ज़्यादा इनपुट कनेक्टेड होते हैं और उन सारे जो इनपुट होते
होते हैं उन इनपुट का हम सिर्फ एक ही आउटपुट निकाल के उसको कंबाइन करके उसका क्या करेंगे कि आगे ट्रांसमिट कर देंगे, और जहाँ पर डीमक्स होगा मतलब रिसीवर होगा वहाँ पर हमारा एक डीमक्स कनेक्टेड होगा, और डीमक्स क्या करेगा, जो हमारा कंबाइन आया हुआ जो मैसेज है वो क्या करेगा कि ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और हमें जो हमारा रिसीवर है उसे जो ओरिजिनल मैसेज है वो वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ इसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। और डेटा ट्रांसमिशन को हम क्या यूज़ करते हैं, केबल्स यूज़ करते हैं। अगर हम मक्स या मल्टीप्लेक्सिंग नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि हर एक पीसी को कनेक्ट करने के लिए लिंक्स लगेंगी। ये सब क्या है, ये सब लिंक्स है। मतलब अगर हमें PC1 को कनेक्ट करना है, दूसरी सेंटर PC को कनेक्ट करना है रिसीवर PC से, वहाँ पर एक लिंक लगेगी। इसी तरह से हमारा जो बजट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसे हम कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। सो मल्टीप्लेक्सिंग के 3 टाइप्स है। कौन से 3 टाइप्स है? फर्स्ट टाइप है 3 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है FDM, मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। एंड लास्ट टाइप है स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग के 3 टाइप्स है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड space division multiplexing. In that we will first discuss about the frequency division multiplexing. तो frequency division multiplexing क्या है ये हम अब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी यूज़र, एक सिंगल यूज़र यूज़ कर सकता है ये फ्रीक्वेंसी फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम। इतने टाइम में, ये जो टाइम है ये इतने पर्टिकुलर टाइम में एक यूज़र इतनी सारी फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकता है। और अगर ये फ्रीक्वेंसी को एक्सेस अगर 2 से ज़्यादा यूज़र एक्सेस करेंगे इस फ्रीक्वेंसी को, तो क्या होगा कि जो हमारा मैसेज है वो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा या फिर मिसमैच हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी को मैं छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर लेती हूँ। सो दिस इज F1, F2, F3, F4 एंड F5. F1 to F5 this is nothing but the user 1, user 2, user 3, user 4 and user 5। मतलब मैंने ये फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया। इसकी वजह से क्या होगा, कम से कम 5 यूज़र तो ये फ्रीक्वेंसी एक्सेस कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो मैसेज है, अगर ज़्यादा लोग इस फ्रीक्वेंसी को एक्सेस करेंगे तो हमारा मैसेज क्रॉस नहीं होगा, मिसमैच नहीं होगा। तो ये है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें हम क्या देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी
frequency become changed, but time remain same। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, मतलब यूज़र 1 सिर्फ इतने ही फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकता है, अगर यूज़र 2 इतनी ही फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकता है, यूज़र 3 इतनी ही फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकता है, एंड बट उसका जो टाइम है वो इतने टाइम को यूज़र 1 इतनी फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगा, उतने ही टाइम को यूज़र 2 इतने ही फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगा, उतने ही टाइम को यूज़र 5 वो फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो फ्रीक्वेंसी बैंड एक दूसरे से सेपरेट होती है। क्यों सेपरेट होती है? यहाँ पर हमारा F1, F2 और F3, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे से क्या होती है? सेपरेट होती है। किस लिए सेपरेट होती है? ताकि जो हमारा F1 और F2 है, ये दोनों को अपनी जो मैसेज है वो क्या एक दूसरे से मिक्सअप ना करे, क्रॉस टॉक ना हो उन दोनों का, इसलिए ये एक दूसरे से सेपरेट होती है। इसे क्या कहते हैं? गार्ड बैंड। दो फ्रीक्वेंसी को जो थिंग सेपरेट करती है उसे क्या कहते हैं? गार्ड बैंड। और वो क्यों यूज होती है? टू अवॉइड द क्रॉस टॉक। ये है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होगा कि हमारा जो टाइम है वो सेम रहेगा, लेकिन हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिवाइड होती जाएगी। जैसे हमारे यूज़र्स फ्रीक्वेंसी को एक्सेस करेंगे, उसी टाइम से हमारी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो जाएगी। एंड यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी बिकम डिवाइड कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बिकम डिवाइड एंड टाइम बिकम सेम। हमारी जो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, और हमारा जो टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और दो फ्रीक्वेंसी को एक बैंड सेपरेट करता है, उसे क्या कहते हैं? गार्ड बैंड। और वो क्यों यूज़ करते हैं? कि दो फ्रीक्वेंसी दो यूज़र के बीच में क्रॉस टॉक ना हो, इसलिए क्या यूज़ करते हैं? गार्ड बैंड। नेक्स्ट टाइप है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या है? अगेन यहाँ पर एक्स एक्सिस पर फिर से है टाइम और वाई एक्सिस पर है फ्रीक्वेंसी। और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है जो यूज़र यूज़ कर सकता है। एक्स एक्सिस पर है टाइम, वाई एक्सिस पर है फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी बैंड है और बैंडविड्थ है जो एक यूज़र यूज़ कर सकता है। और हमें देखना है कि अब टाइम कैसे डिवाइड होता है। यहाँ पर मैंने ये डायग्राम में ये इतनी जो फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक यूज़र यूज़ कर सकता है फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम। अगर हमारे यूज़र जो है वो अगर बढ़ जाते हैं तो क्या होगा कि अगर बहुत सारे यूज़र्स सेम फ्रीक्वेंसी को एक्सेस करने लगते हैं तो फॉर दैट पर्टिकुलर सपोज वन पर्टिकुलर टाइम, तो क्या हो जाएगा कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है या फिर जो यूज़र का जो मैसेज है वो क्रॉस हो जाएगा या फिर मिसमैच हो जाएगा। ये अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर टाइम को ही डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? टाइम डिवाइड हो जाएगा। T1, T2, T3, T4 और T5। मतलब यूज़र 1 जो है वो क्या करेगा? दिस पर्टिकुलर टाइम को वो फ्रीक्वेंसी एक्सेस करेगा। यूज़र 2 क्या होगा?
कि इस पर्टिकुलर टाइम को डेटा जो होगा वो एक्सेस करेगा। यूज़र 3 टाइम 3 जो है वहाँ पर वो एक्सेस करेगा। यूज़र 4 क्या होगा, T4 टाइम को एक्सेस करेगा। और यूज़र 5 क्या होगा कि T5 टाइम को वो डेटा वहाँ का एक्सेस करेगा। इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारी प्रॉब्लम है क्रॉस टॉक होने की या फिर डेटा मिसमैच होने की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये हमें आसान होगा कि डेटा कम्युनिकेशन करने में। इसे क्या हम कहेंगे, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का क्या होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, कि हमारा जो पर्टिकुलर टाइम है फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जो ये जो बैंडविड्थ है, ये बैंडविड्थ सिर्फ एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है। अगर उससे यहाँ पर अगर ज़्यादा यूज़र होंगे और हमें ज़्यादा यूज़र होंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो डेटा है वो मिसमैच होने का, क्रॉस टॉक होने की संभावना हो सकती है। इसलिए क्या होगा कि टाइम डिवीजन में हम वो पर्टिकुलर टाइम को डिवाइड करेंगे और उस यूज़र को उसी टाइम में वो डेटा एक्सेस करना होगा। मतलब यूज़र 1 T1 टाइम में ही डेटा एक्सेस करेगा, यूज़र 2 T2 टाइम में ही डेटा एक्सेस करेगा, यूज़र 3 T3 टाइम में ही डेटा एक्सेस करेगा। अगर यहाँ पर सपोज यूज़र 1 जो है हमारा T1 टाइम में डेटा एक्सेस कर रहा है या फिर डेटा अपलोड कर रहा है एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर, और उसका अगर डेटा अपलोड करने का थोड़ा रह गया तो वो क्या करेगा कि ये जो बाकी 4 लोग हैं उनका जब टाइम ख़त्म हो जाएगा तब वो क्या करेगा, यहाँ पर T6 में क्या करेगा, वो अपना डेटा वहाँ पर डाल देगा या फिर अपलोड कर देगा। ये है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और लास्ट पॉइंट है स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि टाइम और फ्रीक्वेंसी डिवीजन में हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो जाती है छोटी फ्रीक्वेंसी में। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो हमारी पूरी फ्रीक्वेंसी है, ये यूज़र के हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो जाती है। टाइम में क्या हमने देखा कि हमारा जो पूरा एक पर्टिकुलर टाइम है वो यूज़र के बढ़ जाने के कारण टाइम डिवाइड होता है। और स्पेस में हम क्या देखेंगे कि स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में अब जो हमारा स्पेस है मतलब जियोग्राफिकल एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, कि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। सपोज ये हमारा एक जियोग्राफिकल एरिया है और यहाँ पर एक एंटीना लगा हुआ है और इस एंटीना के थ्रू हम क्या करते हैं कि डेटा एक्सेस कर रहे हैं। इस एंटीना के थ्रू हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर है यूज़र 1, यहाँ पर यूज़र 2 और यहाँ पर एक यूज़र है यूज़र 3 और उनका ये उनका स्पेस है। मतलब यूज़र 1 इस स्पेस में है, यूज़र 2 इस स्पेस में है और यूज़र 3 इस स्पेस में है। तो स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होगा कि अगर ये तीनों यूज़र एक ही टाइम पर या फिर एक ही फ्रीक्वेंसी पर डेटा अगर एक्सेस करेंगे तो उनका जो मैसेज है वो क्या हो जाएगा, क्रॉस टॉक हो जाएगा या फिर मिसमैच हो जाएगा। इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि
इसमें से कोई भी दो यूज़र को एक ही टाइम पर एक ही फ्रीक्वेंसी एक्सेस करने के लिए लिमिट कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि इसमें से कोई भी दो यूज़र को एक ही फ्रीक्वेंसी एक ही टाइम पर एक्सेस करने के लिए स्टॉप कर सकते हैं। या फिर तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि ये जो तीन लोग हैं, इन तीन लोगों को एक ही स्पेस में आने से रोक सकते हैं। इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर जो एंटेना है उसकी मदद से हम ये कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो हम एंटेना यूज़ करेंगे वो कौन सा एंटेना यूज़ करेंगे कि मल्टी डायरेक्शनल एंटेना यूज़ करेंगे। उसके हिसाब से क्या होगा कि जो हमारा यूज़र है वो क्या होगा कि एक दूसरे का डेटा क्रॉस नहीं करेंगे अगर हम यहाँ पर मल्टी डायरेक्शनल एंटेना यूज़ करेंगे। और स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हम कहाँ पर यूज़ करते हैं कि जहाँ पर मोबाइल सेल्यूलर सिस्टम होती है वहाँ पर हम स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेसिंग यूज़ करते हैं। स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या है, कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, FDMA एंड TDMA। इसमें क्या है कि जो हमारा एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है वो जियोग्राफिकल एरिया को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे स्पेस में हम डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर यूज़र 1 है उसका ये स्पेस होगा, यूज़र 2 है उसका ये स्पेस होगा, यूज़र 3 है उसका ये स्पेस है। और अगर ये तीनों लोग एक ही टाइम पर एक ही फ्रीक्वेंसी को अगर एक्सेस करेंगे तो उनका क्या होगा कि क्रॉसटॉक होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। इसे हम रिमूव करने के लिए क्या करेंगे कि एक एंटेना फिक्स करेंगे और उसका डायरेक्शन जो होगा वो मल्टी डायरेक्शनल रखेंगे। उससे क्या होगा कि मल्टीपल डायरेक्शन से जो भी डेटा एक्सेस किया जाएगा वो कोई भी आदमी उसे एक्सेस कर पाएगा और वहाँ पर कोई भी क्रॉस टॉक होने की संभावना क्या होगी, कम हो जाएगी। ये है स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। हमने तीन टाइप देखे मल्टीप्लेक्सिंग के। पहला देखा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, सेकेंड देखा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड लास्ट देखा हमने स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हमने क्या देखा कि टाइम रिमेन सेम बट फ्रीक्वेंसी चेंजेस, मतलब जितने यूज़र एक्स्ट्रा ऐड होते जाएंगे उतने हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, डिवाइड होती जाएगी। सेकेंड हमने देखा कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस में क्या होगा कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी इसमें सेम रहेगी लेकिन हमारा जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जितने हमारे यूज़र्स बढ़ेंगे उतने हमारा टाइम क्या होगा, डिवाइड होता जाएगा। और लास्ट हमने देखा स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। स्पेस डिवीजन मतलब हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया है, जियोग्राफिकल स्पेस है वो क्या करेंगे, हम इसमें डिवाइड करेंगे फॉर बेटर कम्युनिकेशन। थैंक यू।